خداوند یہ تیرا الہی انتظام ہے کہ تو نے انسان کی حدوں کو مقرر کر دیا ہے، اور خداوند اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت پر ہر ایک خداوند تیرے پاس چلا جاتا ہے۔ خداوند ہم جسمانی طور پر اس وقت افسردہ ہیں، لیکن اپنی روحوں میں شادمان اور پر امید ہیں کہ ہماری بزرگاں تیرے ابدی آرام میں ہیں۔ تو نے خداوند انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے، تیرا کلام ہمیں تسلی دیتا ہے۔ سو خداوند میں دعا کرتا ہوں آج دوپہر اپنے خادم کے وسیلہ سے تمام عزیزوں کے لیے، اور بالخصوص پاسٹر اکبر سلیم صاحب، ان کے تمام بھائیوں بہنوں خاندان سے خداوند اپنے کلام کو کر، اور کلام کی قدرت سے اپنے لوگوں کو تسلی اور کامل تشفی عطا فرما۔ خداوند تیرا شکر ہو، تو ہی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے خداوند ہمیں تسلی اور اطمینان دے، اور اپنے کلام سے ہمارے حوصلوں اور ہماری ہمتوں کو بندھا، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ ہم سب اپنے سروں کو اٹھائیں گے اور خدا کے زندگی بخش کلام کو سنیں گے۔ جو خادم پیچھے کھڑے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے آ جائیں۔ آئے اپنے سروں کو اٹھائیں، خدا کے کلام کو، جو کلام ہم سب کے لیے ہے، تسلی اور برکت کا کلام ہے۔ میں آپ کی حضور میں، خدا کی حضوری میں، آپ سبوں کی موجودگی میں خدا کے خادم پاسٹر شہباز پال کو دعوت دیتا ہوں، وہ سامنے آئیں گے اور خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سبوں کو میری طرف سے سلام۔ آج ہم سب یہاں پر اس لیے جمع اور موجود ہیں تاکہ خادم پاسٹر اکبر سلیم کی والدہ کو خداوند نے اپنے پاس بلایا ہے، اور میں نہایت عزت اور احترام کے ساتھ آج بعد از دوپہر آپ سبوں کے سامنے خدا کے کلام کو کھولنے کو، اور میری دعا ہے کہ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو تسلی عطا کرے، آمین۔ میں پاسٹر اکبر سلیم صاحب کے سارے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی والدہ خداوند کی بادشاہی کے اندر جا چکی ہے۔ کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں؟ آسمان سے آواز آئی، لکھ مبارک ہیں سارے، تو نہیں نا مبارک، سارے مبارک نہیں ہیں۔ آسمان سے آواز آئی، لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں، اور روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے۔ اس زمین پر ہر وہ شخص جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آسمان کی بادشاہی کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ بادشاہی کا دروازہ کون ہے؟ یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی تو میں ہوں۔ پھر مسیح نے یہ بھی کہا کہ دروازہ میں ہوں۔ آسمان کی بادشاہی کا دروازہ اس زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ صرف خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ ہم سب جتنے یہاں پر ہیں، یہ یاد رکھیے ہم پردیسی ہیں اور اس زمین پر مسافر ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے ہم چند روز کے لیے ہیں، چند وقت کے لیے ہے، لیکن ہمارا حقیقی اور ابدی گھر جو ہے یہ آسمان پر ہے۔ آسمان انہی کو جانتا ہے جو یسوع کو جانتے ہیں، اور جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں، یسوع کو قبول کرتے ہیں،
خدا کے کلام میں لکھا ہے جس طرح موسیٰ نے سانپ کو اونچے پر بلی پر چڑھایا، ابن آدم بھی اسی طرح اونچے پر چڑھایا جائے گا، تاکہ جو کوئی یسوع پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ دوسرے لفظوں میں یسوع صلیب پر چڑھایا جائے گا ساری دنیا کے گناہوں کے لیے، اور جو یسوع کی مصلوبیت پر، کفارے پر، مسیح کے مرنے پر، جی اٹھنے پر ایمان لائے وہ بھی ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ہم سب اس زمین پر پردیسی ہیں، چاہے دنیا میں انسان جتنا مرضی جمع کر لے، اکٹھا کر لے اور بہت کچھ کر لے، پر یاد رکھیے اپنے ساتھ کو کچھ بھی نہیں لے کر جاتا ہے، سب کچھ اس زمین پر ہی رہ جاتا ہے۔ مرنے والوں کے خاندان سے پوچھا جائے یہ بہن یا بھائی مر گیا، ساتھ کیا لے گیا؟ آگے سے جواب یہی آئے گا وہ سب کچھ یہیں پر چھوڑ کر گیا ہے۔ آسمان پر جانے کے لیے یاد رکھیے ضروری یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنا رشتہ، ناتا، تعلق جو ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ جوڑنا ہے۔ میں بائبل مقدس میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب ہے، اس کا پہلا باب ہے 8ویں آیت سے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے۔ خدا کے کلام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ روح القدس اطمینان بخشتا ہے۔ خدا کا پاک روح تسلی اس زمین پر بخشتا ہے۔ خدا یسوع نے کہا جس طرح دنیا تمہیں اطمینان دیتی ہے میں تمہیں اس طرح اطمینان نہیں دیتا، میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا۔ خدا یسوع مسیح ہی اس زمین پر حقیقی اطمینان کا سرچشمہ ہے، اور کلیسیا اور مقدسین اس دنیا میں اب دنیا کے لوگوں کی طرح دکھ نہیں کرتے، نہ ماتم کرتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سو جاتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو۔ ہمیں یقین ہے یسوع بھی مر گیا ہے، پھر تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں جو اپنی قبر کھول کر باہر آ سکتا ہے وہ ان کی بھی قبریں کھول سکتا ہے جو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ وہ خود اپنی قبر کھول کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور بائبل مقدس کے اندر تو ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ یسوع مرا ہوا نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ ایک بار ہماری نجات کے لیے مرا ضرور ہے، لیکن رومیوں کے خط کے اندر یہ لکھا ہے ایک بار جب یسوع مر گیا پھر وہ دوبارہ کبھی بھی مرنے کا نہیں ہے، موت کا اس پر کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ دنیا کے لیے موت خطرناک چیز ہو سکتی ہے، ہلاک کرنے والی چیز ہو سکتی ہے، دنیا موت کو کیڑا کہتی ہے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے اے موت تیرا ڈنگ کہاں گیا؟ یعنی کیڑا ہی ہے نا جو ڈنگ مارتا ہے، لیکن بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ خدا کا شکر ہو کہ جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں گیا؟ موت کا ڈنگ گناہ ہے، گناہ کا زور شریعت ہے، لیکن ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کا شکر کرتے ہیں جس نے اپنی ایڑی سے اس کیڑے کی سر کو کچل ڈالا ہے۔ اب موت میں کوئی فتح نہیں رہی ہے، بلکہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ موت تیری کوئی فتح نہیں رہی۔ میں نے کہا موت دنیا کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، لیکن مقدسوں کے لیے موت خدا کے ساتھ ملاقات ہے، مقدسوں کے لیے موت خدا کے ساتھ ملاپ ہے، اور اس لیے ہمیں دنیا کے لوگوں کی طرح غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نوجوان مبشر تھا، اس کی بہن ہاسپٹل میں داخل تھی، ایکسیڈنٹ اس کا ہوا، ڈاکٹر نے کہا تیری بہن مر گئی، رونے لگا، بہت رونے لگا، چیخے مار مار کر رونے لگا، گھر والے اسے تسلی دے رہے ہیں، باقی لوگ اسے تسلی دے رہے ہیں، اور وہ روتے ہوئے یہ کہتا ہے میں رو اس لیے نہیں رہا کہ یہ مر گئی ہے،
میں تو رو اس لیے رہا ہوں یہ بغیر خداوند یسوع مسیح کو قبول کیے ہوئے مر گئی ہے، اور مجھے یہ پتا ہے کہ جو بغیر یسوع کو قبول کیے مر جائے اس کی جگہ آسمان کی بادشاہی تو نہیں، اس کی جگہ کوئی اور ہو سکتی ہے۔ آسمان کی بادشاہی میں وہی داخل ہو سکتا ہے جس کے نام برا کی کتاب حیات کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ سو یاد رکھیے اس زمین کے اوپر ہم پردیسی ہیں، پر میں بتا رہا ہوں روح القدس کلیسیا کے لیے کہا گیا ہے کہ پاک روح تم پر نازل ہوگا، اور آج کا دور آخری دور ہے اور یہ روح القدس کا دور ہے، یہ روح القدس کے نزول کا دور ہے۔ اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے، یہ کس وقت یہ بیان دیا جا رہا ہے جب یسوع مسیح آسمان پر جانے کو تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یسوع ہمارے ساتھ ہے اور وہ ساتھ رہے گا، لیکن وہ آسمان پر جانے کو ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد ہوگا یہ کہ روح القدس تم پر نازل ہوگا، تم قوت پاؤ گے۔ یہاں لکھا ہے روح القدس نازل ہوگا، یروشلم، یہودیہ، سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ ٹھہرو گے۔ میں اور آپ یسوع کے گواہ ہیں اس زمین پر۔ یہ کہہ کر ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھایا گیا، بدری نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ہوئے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ ہم سب کے لیے اور کلیسیا کے لیے کیا ہے؟ اسی طرح لکھا ہے یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ یہی یسوع بھائی 30 سال کی عمر میں انہوں نے بپتسمہ لیا ہے، وہ تو یہ یردن پر گئے، یوحنا سے بپتسمہ لیا ہے، اور پہلا پیغام انہوں نے دیا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی پیغام دیا ہے توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ 3.5 سالوں تک وہ اس دنیا میں منادی کرتے رہے، وہ اس دنیا میں انجیل سناتے رہے، کلام کی خدمت کرتے رہے۔ کئیوں کو مسیح نے زندہ کیا، پر جن 3 مردوں کا یہاں ذکر کیا گیا، یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا، اور چوتھے دن انہوں نے اپنے دوست لازر کو بھی مردوں میں سے زندہ کیا، انہوں نے ان کو بھی زندہ کیا۔ کیا یہ تینوں مردے پھر دوبارہ نہیں مر گئے؟ یائر پھر مر گیا، بیوہ کا بیٹا پھر مر گیا، لازر پھر مر گیا، لیکن میرے اور آپ کے لیے امید یہ ہے کہ مسیح کی آمد ثانی میں جتنے مردے زندہ کیے جائیں گے، اللہ کا کلام یہ کہتا ہے وہ پھر دوبارہ کبھی بھی مرنے کے نہیں ہے، وہ ہمیشہ تک مسیح کے ساتھ تک لکھا ہے وہ بادشاہی کریں گے۔ یہی یسوع جو جا رہا ہے یہ پھر دوبارہ واپس سے آئے گا۔ نہ جانے دنیا کن کن کا ذکر کرتی ہے، کون پہلے آئے گا، کون بعد میں آئے گا۔ میں ان ساری باتوں کا ایک ہی جواب دیتا ہوں، بھائی جس نے موت کو نیست کیا اور جو اپنی قبر کھول کر باہر آیا ہے، مجھے بتاؤ کوئی اور بھی ہے جو اپنی قبر کھول کر باہر آیا ہے؟ اگر کوئی اور اپنی قبر کھول کر باہر آیا ہے تو چلو سوچا جا سکتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ آئے گا، لیکن بائبل اس کا ذکر نہیں کرتی ہے کہ کوئی اور بھی اپنی قبر کھول کر باہر آیا ہے اور وہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے، زندہ کیا گیا ہے۔ بائبل ذکر یہ کرتی ہے
वापस से आने वाला है। और इस जमीन पर कलीसिया है जिसको वो आसमान की बादशाही में दाखिल करने के लिए लाखों फरिश्तों के साथ वो आने वाला है। कई बार आंसू बहाते हैं, कई बार दुख उठाते हैं, कई बार सोचते हैं शायद मेरी खिदमत का आखिर हो चुका है। लेकिन याद रखिए, जितने मर्जी आंसू बहाइए, दुख उठाइए, एक वक्त आने वाला है मुझे और आप पर कलीसिया को लेने के लिए जो आसमानों से आने वाला है, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो मेरी और आपकी आंखों के सब आंसू पोंछ लेगा। फिर वहां पर रोना नहीं पड़ेगा, वहां पर चिल्लाना नहीं पड़ेगा। एक और आयत में पढ़ता हूं, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील में से उसका 6वां बाब, उसकी 33वीं आयत से, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरी है, दुनिया को जिंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, खुदावन ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो कोई मेरे पास आएगा वो हरगिज भूखा ना होगा, जो मुझ पर ईमान लाए कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया और फिर भी ईमान नहीं लाते। जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज निकाले ना दूंगा। क्योंकि मैं आसमानों से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के माफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के माफिक अमल करूं। और मेरे भेजने वाले की मर्जी यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ ना खो दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी यह है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। यीशु मसीह ने कहा, जिंदगी की रोटी तो मैं जो आसमान से उतरी हूं। और यहां यह लिखा हुआ है कि यीशु इस जमीन के ऊपर अपनी मर्जी पूरी करने के लिए नहीं आया, बल्कि वो इस जमीन के ऊपर अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए आया है। मुबारक वो लोग हैं जो इस जमीन पर अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने खुदावंद की मर्जी को पूरा करते हैं। और जो लोग अपने खुदावंद की मर्जी को पूरा करते हैं उनके लिए वादा यह है कि मैं आखिरी दिन फिर उनको जिंदा करूंगा। बागे गत्समनी में खुदावंद यीशु ने कहा, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। कहा यह जाता है, यीशु की हर दुआ का जवाब आया है, पर ऐसे लगता है वाहिद ये दुआ है, वो कह रहा है ये प्याला मुझसे टल जाए, तो उसे कोई जवाब नहीं आया। मसीह ने आगे से ये जान लिया कि ये प्याला मेरे पिए बगैर ये टल नहीं सकता है, और उन्होंने वहां पर ये कहा, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। शायद मसीह ने सारी दुनिया के लिए बदी और गुनाह और खुदा के गजब का प्याला पिया है, लेकिन उसने मुझे और आपको निजात के प्याले में से पिलाया है। उसने हमें निजात के प्याले में से पिलाया है। जो खुदा की मर्जी पर चलता है, यीशु का वादा है, मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। खुदावन इस कलाम के वसीला से हम सबों को तसल्ली अता करे, आमीन। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे खुदावंद की हजूरी में। इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो हम सब ने सुना है, इस पर गौर करें। मेरी बहनों, मेरे भाइयों,
आए सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, हालेलुया, और दुआ करना शुरू करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। पास्टर सुहेल शलीम से कहूंगा वो सामने आएंगे और खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें। आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तमजीद और तेरी सिताइश करते हैं तेरे बड़े फजल और तेरे बड़े रहम के लिए कि तूने अपने इकलौते भेजे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लहू की राह से हमें निजात बख्शी है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि मसीह यीशु के वसीले से हमें हमेशा की जिंदगी मिली है। यीशु मसीह के वसीले से हम आसमान की बादशाही में दाखिल हुए हैं, हमें जलाल में दाखिल किया गया है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ऐ आसमानी बाप अपने तख्त का वारिस बनाया है। शुक्रगुजार हैं कि तूने आलम बाला पर हमारे लिए जगह को तैयार किया और तेरे बेटे हमारे खुदाम यीशु मसीह ने वो जगह तैयार की है। और हम में से जितने सो जाते हैं वो सब के सब वो आसमान पर आलम बाला पर तेरे हुजूर में पहुंचते हैं। तेरा शुक्र करते हैं। बेशक हमारी बुजुर्ग बहन के जुदा होने से इस घराने को हम सबको गम है, लेकिन मसीह यीशु में हमारी उम्मीद बड़ी है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने खुदावंद इसे जलाल में दाखिल कर लिया और एक बड़ी उम्मीद हम भी रखे हुए हैं। और जितने हम में से तेरे पास आते हैं वो सब जलाल में दाखिल किए जाते हैं। मैं तेरा शुक्र करता हूं। और जो कलाम पेश किया गया, इस कलाम के मुताबिक हर एक को दानाई, अकल, फहम, समझ दे, उसको गहरे तौर पर जाने, पहचाने और हमें मालूम हो कि यीशु ही वो राह है, यीशु ही वो दरवाजा है जिससे हमेशा की जिंदगी में दाखिल हुआ जाता है, आसमान की बादशाही में दाखिल हुआ जाता है। ओ हालेलुया। मिन्नत करता हूं ऐ बाप, हर एक को इस कलाम के मुताबिक फजल दे कि वो मसीह को कबूल करके वो निजात में दाखिल हो जाए। और आज खुदावंद ये घराना इस कलाम के सबब से तसल्ली पाए, क्योंकि तू ही तसल्ली का चश्मा है, तू ही उम्मीद का चश्मा है, तू ही इत्मीनान का चश्मा है। और इत्मीनान तेरे रूह के वसीले से हासिल होता है और तेरे रूह से जो इत्मीनान है वो कभी नहीं खत्म होता, वो कभी नहीं टूटता, बल्कि हम आराम पाते हैं, हम तसल्ली पाते हैं और हम तुझ में शादमान रहते हैं। इसलिए जैसे तेरे खादिम ने फरमाया, हम कलाम के मुताबिक ना गम करते हैं ना दुख करते हैं, बल्कि उस बड़ी तसल्ली में जो पाक रूह के वसीले से है हम हमेशा तुझ में कायम रहते हैं। मिन्नत है यही तसल्ली इस घराने में कायम रहे और सारा गम दूर हो। और खुदावंद तेरा खादिम खुदावंद इसी तरीके से तुझसे तसल्ली पाके जैसी खिदमत कर रहा है उससे बढ़ के खिदमत करता चला जाए। पास्टर सलीम के लिए, इसके पूरे घराने के लिए बरकत और तसल्ली की दुआ करता हूं यीशु नाम में, आमीन। अपने सर को उठाएंगे इससे पेशतर कि हम कब्रिस्तान की तरफ जाएं। मैं पास्टर अकबर सलीम साहब को दावत देता हूं, वो सामने आएंगे और कुछ बातें आपके साथ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कदूस बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं उसके बड़े इत्मीनान के लिए, तसल्ली के लिए जो अपने लोगों को बख्शता है। आमीन। गुजरी रात जब हम इबादत कर रहे थे तो इबादत के बाद मैंने एक ऐलान किया। इस वक्त हमारी जो माँ है वो हयात थी, सांसें उनके नथनों में मौजूद थी। तो मैं कलीसिया में ये ऐलान कर रहा था कि किसी वक्त भी खुदावंद उनको अपने पास बुला सकता है। तो हम लोग स्टिल वहीं पर थे। 5 से 10 मिनट के बाद ये खबर आई कि हमारी जो बुजुर्गा माँ है वो ज़मीनी सफ़र ख़त्म करके खाल के हकीकी के पास जा पहुंची हैं। तो उस वक्त भी हमारे मुंह से तसल्ली और इत्मीनान की बातें निकल रही थी। और मैंने एक बात कही कि तकरीबन 25 से 30 साल हो गए हैं, ठीक है जी, इस खिदमत के दौरान
सैकड़ों लोगों के जनाजे मैंने किए और बड़ी दिलेरी के साथ मैंने खुदा के कलाम को सुनाया और तसल्ली की बातें लोगों तक पहुंचाई। तो मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि हम खुद उन बातों से खाली रहें। खुदा का इत्मीनान, ठीक है, याद रखिए, इत्मीनान वो कुव्वत बख्शता है जिसमें आप मौत का सामना भी कर सकते हैं। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में आप जितने भी पौलुस रसूल के खतूत पढ़ेंगे, हर जगह पर सलाम दुआ में दो अल्फाज आते हैं, तुम्हें फजल और, लेकिन हम लोग जब भी एक दूसरे से सलाम दुआ लेते हैं, हम फजल की बात करते हैं, इत्मीनान का। इत्मीनान सिर्फ कहां पर बोलते हैं? जब कोई मर जाता है। तो इसका मतलब है कि जाने अनजाने में हम ये जरूर समझते हैं कि इत्मीनान, ठीक है, वो कुव्वत है जिसमें हम मौत का सदमा बर्दाश्त कर सकते हैं। पादरी शहबाज साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें बयान की हैं, खुदा आपको बरकत दे। एक तमसील इन्होंने कही कि एक खातम था जी, उनकी बहन का इंतकाल, वो बहुत ज्यादा रो रहा था और बाद में उसने बताया कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि ये मर गई है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये नजात के बगैर मर गई है। तो हमारे भी आंसू बह रहे हैं, ठीक है, दिल जो है वो गमज़दा है, आंसू भी बहते हैं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरे आंसू इसलिए नहीं है, ठीक है, कि हमारी जो मां है वो नजात से महरूम रह गई, बल्कि मेरे अंदर जो एक सदमा गम है वो ये कि इनकी जुदाई के बाद अब मेरे पीछे जो दुआ करने वाले लोग हैं उनमें से एक सतून जो है वो कम हो गया। मुझे ये कमी जो है वो अपनी पूरी हयात में महसूस होती रहेगी। बड़ा अच्छा लगता था सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग, वालिद साहब और वालदा सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाते थे और इनकी दुआओं से पूरा घर जो है वो गूंजता था। तो अब वो जो दुआएं थी उनमें से एक हमारा जो दुआ का सिपाही है वो कम हो गया है, ये मुझे एहसास होता है और ये कमी मैं महसूस करता रहूंगा कि अब मेरे पीछे जो दुआ करने वाले सैतून थे, जो हाथ थे, उनमें से 2 हाथ अब नहीं है। ये गम है, लेकिन उसके अलावा हम खुदा का शुक्र करते हैं, हमारी वालदा ने नजात को हासिल किया और हमारे साथ जहां कहीं हम जाते थे वो हमारे साथ साथ रही और जब तक खुदा ने उनको कुव्वत तकवीयत दी वो तमाम इबादत में शरीक होते रहे। हालेलुया, आमीन। आप सबों के लिए भी मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, बिलखसूस तमाम खुदाम का जो हमारे खानदान की तसल्ली के लिए आज सब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। आप सबों के लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, आमीन। अच्छा, एक और बात मैं कहता चलूं, ये भी खुदा का फजल है, हमारी जो वालदा है उनके जितने भी बहन भाई थे, उनसे बड़े और उनसे छोटे, वो सारे के सारे रहमत फरमा दें, जितने उनसे छोटे थे और जितने, ठीक है, और वक्त से कुछ लोग पहले ही चले गए, ठीक है जी। यहाँ हमारे सारे बैठे हुए हैं, अजीज बहन भाई बैठे हुए हैं और हमारे जो ननियाल वाले थे उनमें से बड़े स्ट्रॉन्ग लोग थे, फिजिकली तौर पर बड़े मजबूत लोग थे, लेकिन किसी न किसी हादसे की नजर वो होकर इस दुनिया से चले गए। तो ये मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर खुदा का फजल था कि तमाम बहन भाइयों से ज्यादा उम्र जो है इन्होंने पाई, अपने से बड़ों से भी और अपने से छोटों में। और अब एक ही हमारे बुजुर्ग रह गए हैं, हमारे जो सबसे बड़े मामू थे, हमारी जो ममानी है वो यहाँ पर हयात है और मैं दुआ करता हूँ, शुक्र करता हूँ कि खुदा ने इनको अभी तक सलामत रखा। मेरे दिल में एक बात आ रही थी, बल्कि हम ये करेंगे जब दोबारा हम यहाँ पर आएंगे दुआ करेंगे तो एक बुके जो है वो हम इनको पेश करेंगे कि अब तक ये हयात है। कभी कभी हयात में एप्रिसिएशन हो जाए तो ये बड़ा शानदार लगता है, मरने के बाद सल्यूट भी होते हैं, सारी बातें होती हैं, लेकिन जो बातें हयात में हो जाए वो अनफॉरगेटेबल होती हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरी ननान ने मेरी खिदमत बड़ी की थी। देखो मेरा दिल पहले ही सोच रहा सी, मैं बच्ची ਨੂੰ जाकर मिला, छोटी सी
इसने अपने मेरे बच्चे आप पाल दी रही है, इसका बहुत तरह से। और मेरा बिल्कुल मेरे यीशु ने कितना बड़ा इंसाफ किया है, और मैंने वो शक्ल बखा दी थी। परसों मैं आई, आप बोली नहीं मेरे साथ, बोली नहीं, पर मैं शक्ल देख गई, मैंने खुशी मिल गई। इसने मेरी बहुत खिदमत की थी, बहुत दिल जान से मेरी औलाद अपनी गोदी में थी। अपने दर्द भी बहुत मेरा प्यार करती थी, बहुत अच्छी लड़की है, और 10 बरस से मेरे पूरे खानदान में ईमान के मजबूत थी। ये पूरे खानदान जो मान के मजबूत है रही है। मैं बड़े शुक्र कर रही हूं, आज अपनी औलाद दे कंधे ते जा रही है, बड़ा शुक्र कर रही हूं। और देखो मेरे ना प्यार करती सी, मेरी खिदमत करती सी। मैं इस्लामाबाद मेरा उठ ही दिल के नहीं, मैं आपको मिल के आवादी। आज मैं बड़ा शुक्र कर रही हूं, मैं उसकी चेहरा देख लिया वे, तेरा शुक्र कर रही हूं, उसने दुआ कर दी ऐसा। परसों आई हूं, मैं ना बोली नहीं है, मेरा नाम अपना गल्ला करता कुछ और ते मैंने आके छाड़ देना कि नहीं, एदा 1 मिनट साल होना कभी ये जाने वाली या। मैं बड़ा शुक्र करनी, मेरा चेहरा देख दिया, इसने मेरे नाल कोई बात नहीं तक की थी, प्यार करती रही, मेरे बच्चों को संभालती रही, मैनू नहीं सी देती, खुद संभालती सी, मुझे याद आ रही है। तो शुक्र करनी आज अच्छे तरीके नाल अपने घर जाऊं। ये असल गल है, ईमान की बहुत मजबूत है, ईमान की बहुत मजबूत सी। एदियां दुआवां नाल एदी औलाद आज इत्थों तक पहुंची। ठीक है, मैं इस वक्त सबको सलाम करनी हूं कि मैं बड़ा शुक्र करनी हूं दादा, उसने इत्थों तक मैनू लेके आया। ठीक है, एक आखिरी बात, उसके बाद दूसरे जो भाई हैं तदफीन के बाद अगर कुछ वो कहना चाहें तो वो कह सकते हैं। जब पहले भाई की शादी हुई तो बहू जब आती है तो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। फिर दूसरे भाई की, भाई असगर की शादी हुई तो कुछ आवाजें उठती थी। ठीक है, अजीजों में से भी अहले मोहल्ले वाले भी कहते थे, अहले मोहल्ला वाले, कि हम इनको बताएंगे कि बहुओं को कैसे रखा जाता है। ठीक है, हम 5 भाई यहाँ पर हैं और उनकी बेगमात भी यहीं पर है। ठीक है जी, तो वो कहते थे कि हम इनको बताएंगे कि बहुओं को कैसे, यानी कि हमारी वालदा के बारे में ये कहा जाता था कि इनको शायद वो सलीका नहीं है। तो बाद में जो कुछ हुआ, या उन्होंने जब अपने बच्चों की शादियां की तो हमें कोई नजर नहीं आया कि वो इकट्ठा रहा, लेकिन खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम आज तक भाई इकट्ठे हैं, हमें और अपनी वालदा के साथ रहे। मुझे हमेशा इस बात से ब्लैकमेल किया जाता है, जब भी मैं कहता हूं कि मैं इस मुल्क को छोड़कर चला जाऊंगा, कहीं और चला जाऊंगा, तो मिसिस जो है वो खास तौर पर कहती है ये रह नहीं सकेंगे, ना ये अपने भाइयों के बगैर रह सकते हैं, क्योंकि 15 दिन 20 दिन रहते हैं इनको बुखार हो जाता है। सारा सबका यही हाल है। ठीक है, 15 से 20 दिन एक दूसरे से जुदा होते हैं, बुखार हो जाता है। और सेकेंडली ये जो कलीसिया है, ईमानदार है, रफाकत है, इसके बगैर, तो मैं कहता हूँ ये आप इन बातों से मुझे ब्लैकमेल करते हैं। आपको पता है कि मैं अपने दोस्तों के बगैर, यहाँ जितने खादम बैठे हैं, ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि मंथली रफाकत रखी जाए, इनके साथ बैठा जाए, और ये मेरी कमजोरी है। मैं ना अपनी कलीसिया के बगैर रह सकता हूँ, ना अपने जो खुदा दोस्त हैं, और ना अपने बहन भाइयों के बगैर। ये मोहब्बत खुदा ने डाली हुई है। थैंक यू जी। हालेलुया। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे इन सारी बातों के लिए, इस अच्छी गवाही के लिए जो खुदा के खादम के वसीला से हमने सुनी है, अपनी बुजुर्गा के लिए और खानदान के लिए, इस मोहब्बत, इस प्यार के लिए, उनकी जिंदगी के सारे अयाम के लिए जो उन्होंने इस जमीन पर एक नमूने के तौर पर गुजारे हैं, उनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पास्टर बीएम जॉर्ज से गुजारिश करूंगा वो सामने आएंगे और दुआ करेंगे। दुआ मांगे। कादर मुतलक जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम, तेरी सताइश करते हैं। बाप तू भला है और तुझ जैसा कोई नहीं, तेरी लात और मोहब्बत के लिए शुक्र करता हूं खुदा बाप।
तेरे कलाम में लिखा है कि सादक की याद हमेशा रहती है, और हमने अपनी बुजुर्गा की जिंदगी के बारे में सुना है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने पास उसे बुलाया है, और उसकी औलाद के लिए शुक्र करते हैं खुदावंद तूने अपने फजल से उसकी औलाद को खिदमत के लिए चुना। तेरा शुक्र करते हैं। मैं तेरे खादम के लिए उस अच्छी गवाही के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूं, तेरी तारीफ तेरी सताइश करता हूं। सारी बातों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। अब जब हम तदफीन के लिए जाते हैं तो अपनी लोगों की मदद और रहनुमाई करना। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। हम इन सारी बातों में सारा जलाल खुदा बाप, बेटा और रूह कुदस को देते हैं। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आए हम सब मिलकर खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा रहे। आमीन। कलाम प्रकाश से खुदा के कादम पास्टर सुहेल शलीम हम सबको रुखसत करेंगे। अब हमारे खुदा मसीह यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर अबद तक इन सब के साथ और कुल मुकद्दसीन के साथ होती रहे, बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम में। आमीन।